Hello students, myself Ashwini, and today students we are going to start our next chapter, that is cell cycle and cell division. So this chapter name is student made up of two parts, that is cell cycle and cell division. First of all, let's understand cell division. Cell division is a very common term student, that cell division of cell. जब भी एक सेल डिवाइड करता है आगे फर्दर इन डॉटर सेल्स में, दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन. एंड अगर आपको याद हो, इन cell chapter there is one biologist, Rudolf Virchow, has said that new cells arise from pre-existing cells. Latin भाषा में he has said that hominis cellula e cellula. What does it means by Rudolf Virchow? That new cells arise from pre-existing cells. सेल डिवीजन की डेफिनेशन देखें स्टूडेंट, इट इज अ प्रोसेस इन विच सिंगल पेरेंट डिवाइड इनटू टू डॉटर cells. Now, what is the significance of cell division, student? Lot of significances. First significance is to produce new ones. Reproduction. Life is going on, continuous process है, and reproduction is very important. So reproduction is based on cell division. Next, student, growth. For the growth of the body, when our growth starts, students, when our life, then we are a single cell in the form of zygote. In our body today, millions of cells are there. How these cells are possible? With the help of cell division. So growth is also one of the function, one of the significance of cell division. Next, student, repairing of damaged cell. जब भी कोई सेल खराब हो जाते हैं बॉडी में, उनकी रिपेयरिंग भी कौन करता है? दैट इज सेल डिवीजन. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स बनना बड़ा जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनने के लिए भी देयर इज अ नीड ऑफ सेल डिवीजन. सो दीज आर सम सिग्निफिकेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट ऑफ cell division. Now student, next, types of cell division. There are two types of cell division. One is mitosis. Mitosis is equational cell division. Means when cell divide into two daughter cells, next जो cell बनेंगे आगे दो daughter cells, their size and chromosome number will remain same. And second is student meiosis. Meiosis is reductional cell division. इसमें जो आगे daughter cells बनेंगे, the cell size and chromosome number of that cells will be half as compared to the parent cell. So that's why it is called reductional cell division. और equational cell division में क्योंकि chromosome number भी same रहेगा और size भी same रहेगा, that's why it is called equational cell division. So mitosis and meiosis are two types of cell division. Mitosis is equational and meiosis is reductional. याद रखेंगे इन दोनों चीजों. Next students, अब बात करते हैं cell cycle की. Cell cycle क्या है student? All the events that takes place before division of cell. That means when cell is preparing itself for division, so during that what it is doing? It is duplicating its DNA, it is replicating or duplicating its cell constituents, cell organelles. Because cell को जब divide करना है तो हर चीजें डबल चाहिए उसके पास, उसका DNA डबल होना चाहिए, उसके cell organelles डबल होने चाहिए. तो ये सारी चीजें सेल को करनी है. And then finally cell has to divide. So these all sequence of events that cell is doing during cell division, that is called cell cycle. So what is the definition? The sequence of events by which a cell duplicates its genome. Duplicates its genome means when it is duplicating its DNA copying. 10th में पढ़ते थे ना DNA copying, DNA replication. जब अपने DNA को डबल करेगा. एंड सिंथेसाइजिंग अदर कंस्टिट्यूएंट्स. अदर कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब जो उसके और दूसरे पार्ट है, लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, उनको भी डबल होना पड़ेगा ऑफ अ सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल साइकिल. तो एक पेरेंट सेल के से उसके दो डॉटर सेल बनने का जो बीच के जो इवेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल. एंड दीज इवेंट्स आर इन सीक्वेंस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फेजेस ऑफ सेल साइकिल. एक जो सेल साइकिल होता है उसके दो फेज हैं. फर्स्ट इज इंटरफेज और रेस्टिंग फेज एंड सेकंड इज माइटोटिक फेज और एम फेज. कौन कौन से फेज हैं? पहला इंटरफेज है जिसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं और सेकंड माइटोटिक फेज और एम फेज. स्टूडेंट, इंटरफेज और रेस्टिंग फेज द प्रेपरेशन फेज. सेल को डिवाइड होना है तो डिवीजन से पहले उसको जो जो तैयारियां करनी है अपने,
उसको डुप्लीकेट करना है, अपने जीनोम को, कंस्टिट्यूएंट्स को डुप्लीकेट करना है, दैट ऑल, वो सारी जो प्रिपरेशन हैं, दैट इज इन इंटरफेस। तो इंटरफेस का दूसरा नाम क्या है? प्रिपरेशन फेज भी कह सकते हैं इसको, नॉन डिवाइडिंग फेज भी कह सकते हैं। इस फेज में सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल अगले फेज में डिवाइड करेगा, इस फेज में सिर्फ तैयारी करेगा डिवाइड करने के लिए, और इट इज अ वेरी लॉन्ग फेज। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, माइटोटिक फेज, ये वो फेज है जिसमें अब सेल को क्या करना है? डिवाइड करना है, और पेरेंट सेल से आगे दो सेल बन जाएंगे। सो सेल साइकिल में दो फेज है, इंटरफेस और माइटोटिक फेज। सेल साइकिल की ड्यूरेशन भी वेरी करती है स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है, मैं यहां लिख रहा हूं सेल साइकिल ड्यूरेशन। सेल साइकिल ड्यूरेशन स्टूडेंट फॉर ह्यूमन सेल, दैट इज अबाउट 24 आवर्स। एक ह्यूमन सेल की सेल साइकिल की ड्यूरेशन 24 आवर्स की है, और इस 24 आवर्स में भी 23 आवर्स इंटरफेस, आई फेज, आई एम राइटिंग हियर आई is for interface, and just 1 hour is of M phase। 23 घंटे का इंटरफेस है, सिर्फ 1 घंटे का एम फेज। इससे समझ सकते हैं हम कितना ज्यादा समय लगता है एक सेल को अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को आगे फर्दर डिवाइड करने के लिए। ह्यूमन में 23 घंटे का इंटरफेस है, 1 घंटे का माइटोटिक फेज में सेल डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर ईस्ट की बात करें, ईस्ट के केस में जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन दैट इज ऑफ 90 मिनट्स। इस तरह से स्टूडेंट इकोलाई की बात करें, अगर इशेरिशिया कोलाई, इट्स सेल साइकिल ड्यूरेशन इज 20 मिनट्स। मतलब इतने समय के बाद एक सेल से दो सेल बनते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में आफ्टर 24 आवर 1 सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। अगर ईस्ट बात करें तो इट इज एस्टैब्लिश्ड टाइम इज 90 मिनट्स। एंड इकोलाई में एक सेल से दो सेल बनने में कितने समय लगता है? दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स। सो सेल साइकिल ड्यूरेशन वेरीज organism to organism. Let's start to understand cell cycle. So cell cycle, we know that it has two phases, interphase or resting phase and mitotic or M phase. Interphase is non-dividing phase or mitotic phase is the dividing phase. Interphase is student further divided into G1, that is gap 1 phase, S that is synthesis phase, and G2 that is gap 2 phase. And similarly mitotic phase is also divided into two phases, that is karyokinesis, that is division of nucleus, and cytokinesis, division of cytoplasm. Now let's see the diagram. So this is the interphase student, that is from here G1, S and G2. So from here the phase that is going on up to that particular mark, that is interphase. So interphase is covering almost a major part of the cell cycle. So first in interphase G1 phase is there. In this growth is going on, some protein synthesis is going on. In case of S phase there will be duplication of DNA. DNA की copying होएगी, and then again some growth happens, and finally then the cell enter in M phase. And M phase is undergo two stages, that is karyokinesis, and karyokinesis is further divided into prophase, metaphase, anaphase, telophase, which we'll discuss in next topics. And then finally when karyokinesis get complete, then cytokinesis happens and division of cytoplasm is there, and then finally this parent cell divided into two daughter cells. Now students, these two new daughter cells can be enter further in G1 phase for new division, for next division, or they may go in an inactive stage, or in a G0 phase, or in a quiescent stage. If cell enter in this stage, now they will not divide. They will not divide. They are metabolically active, but they will be differentiated into a cell to perform some specific function, but they will now not divide. And if they don't enter in G0 stage or quiescent stage, then immediately again G1 starts, and then again they will start to divide. So once cell enter in G0 stage, they are metabolically active, but
they are differentiating into now a cells to perform some specific function. In some cases student it is observed that sometime ये जो G0 stage में सेल चले जाते हैं, ये दोबारा वापस रिवर्स सेल्स और दोबारा डिवाइड करना शुरू कर देते हैं कुछ केसेस में. फॉर एग्जांपल फाइब्रोब्लास्ट सेल ऐसे सेल है हमारी बॉडी में जो हमारी इंजरीज को हील करते हैं. तो दे हैव एबिलिटी कि वो G0 स्टेज में जाने के बाद दोबारा रिवर्स सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगेन दे अटेन द एबिलिटी टू डिवाइड. पर कुछ सेल ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जो एक बार क्यूसेंट स्टेज में चले जाते हैं, देन दे डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स, दे नेवर कम बैक टू डिवीजन फॉर डिवाइडिंग फेस, सच एज नर्व सेल्स, स्केलेटल मसल सेल. ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एक बार क्यूसेंट स्टेज में चले गए तो फिर डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्पेसिफिक सेल्स में, फिर दोबारा कभी भी डिवाइड नहीं करते. पर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की बात करें तो वो सेल की बॉडी की जरूरत के हिसाब से G0 स्टेज में जाने के बाद भी अगेन दे कैन कन्वर्ट इनटू रिवर्स सेल्स एंड अगेन दे स्टार्ट डिवीजन. Now students, if we see NCERT book, NCERT has raised some questions on the same page where we are discussing about this interphase and M phase. First is that how do plants and animals continue to grow all their lives? They continue to grow all their lives because they have some structure, some special structure which has an ability of division. Next students, do all cells in a plant divide all the time? No. All the cells in a plant do not divide all the time. In 9th class we have studied that there is specific tissue, that is meristem tissue. Only the cells of this tissue have ability to divide. और ये कहाँ कहाँ present होता है meristem tissue? At the tip of root and shoot of the plant, on the sides of the plant, as well as in the base of the leaf, in the base of the node, as well as base of the internodes. Because in 9th we have discussed that meristem tissues of three types: apical meristem tissue, intercalary meristem tissue, and lateral meristem tissue. So only the cells of these tissue will able to divide. Next question is student, that do you think all cells continue to divide in all plants and animals? No. In plants only meristematic cells, and in animals the cells, stem cells have also the ability like meristematic cells. So plants में meristematic cells और animals में stem cells have ability to divide. Next students, do animals have similar meristematic tissues? Yes, they have also stem cells that are similar to meristematic tissue. So these are some questions that are discussed on the same page. We are discussing about the interphase and M phase of the cells. Students, let's discuss interphase in detail. So interphase has three phases. First, G1 or gap1 phase. In G1 and gap1 phase, what happens? There is synthesis of protein. Protein will be synthesized, especially enzymes. Students, enzymes are chemically proteins. तो हमें यहाँ पर ऐसे प्रोटीन बनाने हैं जो बेसिकली वो एंजाइम बनाएंगे दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि एस फेस इज नोन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें एंजाइम चाहिए. तो उन एंजाइम को जो प्रोटीन बनाते हैं वो कौन से फेस में बनेंगे? दैट इज फॉर्म्ड इन G1 और गैप1 फेज. सेकेंड स्टूडेंट, आरएनए सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए भी चाहिए हमें. आरएनए बिकॉज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. सो आरएनए भी बनेंगे, तीनों तरह के आरएनए बनेंगे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एज वेल एज आरआरएनए. नेक्स्ट स्टूडेंट, एटीपी सिंथेसिस. एनर्जी कंपाउंड भी चाहिए जो हमें डीएनए रेप्लिकेशन में बनाने में हेल्प कर सकें. सो एनर्जी रिच कंपाउंड that is ATP also formed in this phase, same, that is G1 phase. Next student, जब ये सारी चीजें होंगी तो what happen? The size of the cell will also get increased. So cell growth also taken place in this phase. And lastly, organelle duplication. बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट को छोड़ दें तो सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं. कौन से फेज में? दैट इज गैप1 फेज में. सो गैप1 फेज में प्रोटीन बनेंगे, स्पेशली वो प्रोटीन जो एंजाइम बनाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. उसके अलावा आरएनए सिंथेसिस होगा क्योंकि रेप्लिकेशन में आरएनए की भी नीड रहती है. देन नेक्स्ट एटीपी सिंथेसिस रहेगा, एनर्जी रिच कंपाउंड विच विल हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन. एंड नेक्स्ट सेल साइज बढ़ेगा और ऑर्गेनल डुप्लीकेशन भी होगा इस पर्टिकुलर फेज में. एस फेज की बात करें स्टूडेंट, इट इज ओनली एंड ओनली नोन स्पेशली फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. इसमें जो पेरेंटल डीएनए है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, उसकी एक और कॉपी बन जाएगी. नेक्स्ट स्टूडेंट, in this phase there is a division of centriole. Centriole is responsible for spindle formation in animal cell. During cell division we need spindle
on which chromosome will remain attached. So spindle formation is done by centriole in एनिमल सेल. सो एनिमल सेल में सेंट्रियोल रहते हैं तो सेंट्रियोल की भी डुप्लीकेशन होगी इस पर्टिकुलर फेज में. एंड लास्ट स्टूडेंट, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस. हिस्टोन प्रोटीन्स आर द प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग ऑफ डीएनए. अब डीएनए की डुप्लीकेशन हुई है, नया डीएनए बना है, तो फॉर द पैकिंग ऑफ दैट न्यू डीएनए आल्सो वी नीड मोर हिस्टोन प्रोटीन्स दैट कैन पैक दैट पर्टिकुलर डीएनए. सो एस फेज में क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होती है और हिस्टोन प्रोटीन भी बनता है. हिस्टोन प्रोटीन वैसे G1 फेज में भी बनता है, लेकिन पूरा कंप्लीशन कहां होता है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस का, दैट इज इन S फेज. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, G2 और गैप 2 फेज. G2 और गैप 2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस रहता है, स्पेशली ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा. ये वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिन पे क्रोमोसोम अटैच होते हैं. तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो बनेगा वो कौन से फेज में बनेगा, दैट इज G2 फेज. नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसिस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो प्रोटीन बनाते हैं वो भी अब हमारे को चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनल बने हैं हमारे पास और इतने ऑर्गेनल्स के लिए हमें मेम्ब्रेन चाहिए. तो मेम्ब्रेन के लिए प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन कहां बनेगा, स्पेशली इन G2 फेज. एंड लास्ट स्टूडेंट, कुछ सेल ऑर्गेनल जो भी नहीं बने थे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus एंड क्लोरोप्लास्ट, दैट विल बी सिंथेसाइज्ड इन G2 और गैप 2 फेज. तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं स्टूडेंट. गैप 1 में क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, स्पेशली जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, आरएनए सिंथेसिस रहेगा, एटीपी बनेगा और सेल साइज ग्रो करेगा और कुछ ऑर्गेनल भी डुप्लीकेट करेंगे. स्पेशली ऑलमोस्ट सारे कर जाएंगे, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के. एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होगी, डीएनए की एक और कॉपी बनेगी और उसके बाद सेंट्रियोल की भी डुप्लीकेशन होती है यहाँ पर, और डीएनए को पैकिंग के लिए जो प्रोटीन चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन, उसकी भी सिंथेसिस यहाँ पर कंप्लीट होती है. देन इन G2 और गैप 2 फेज स्टूडेंट प्रोटीन बनेंगे, स्पेशली ट्यूबुलिन प्रोटीन जो स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं. नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन बनेंगे, जो नए ऑर्गेनल बने हैं उनके लिए नई मेम्ब्रेन चाहिए तो उसके लिए प्रोटीन बनेंगे. और लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, क्लोरोप्लास्ट जो अभी तक नहीं बने थे वो यहाँ पर बन जाएंगे, दैट इज इन G2 और गैप 2 फेज. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो लेक्चर. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल मीट विद द M phase. Till then, take care. Thanks.